Hello, in this video we are going to see what is acceleration due to gravity. Now हमें पता है कि every object is attracted to every other object in the universe because of gravitational force, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So while looking at acceleration due to gravity, हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो acceleration due to gravity है ये with respect to अर्थ है, दैट इज अर्थ के वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन आता है. सो कंसिडर दिस इज अर्थ ऑफ मास m एंड देयर इज ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट सम हाइट, और वी विल फर्स्ट कंसिडर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच में डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सेंटर टू दिस वन? इट विल बी रेडियस ऑफ द अर्थ. दैट इज उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है अर्थ की रेडियस के बराबर. सो फोर्स क्या हो जाएगा उन दोनों के बीच में? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. सो वी नो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. सो इफ अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका कुछ एक्सीलरेशन भी रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, विच विल बी इक्वल टू एम ए. So we can write this force equal to ma equal to gmm upon r square. Now we call this acceleration towards the center of the earth as acceleration due to gravity. हम इसे बोलते हैं acceleration due to gravity. So we can write ma equal to mg, and g is this one, this acceleration due to gravity. So if we cancel this m and m, we get g equal to gm upon capital R square. gm upon capital R square. So this is the formula for acceleration due to gravity. So अगर अर्थ के सरफेस के कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ वो इतना होगा. m is the mass of earth, g is universal gravitational constant, and r is the radius of the earth. We know value of g is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So this is the value of gravitational constant, and this is the formula for acceleration due to gravity. Now we will look at the variation of acceleration due to gravity with height and depth. तो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे नहीं है, that is it is above height h with respect to surface. So we will consider first this is earth and this is object and the height is h. Radius of the earth is we know r. We know the radius of the earth. So what will be the force on this object? Or first we will consider acceleration due to gravity directly. So we can write gh equal to g m upon r square. Let's say r is the distance between this object and center of the earth. Now we can write this r equal to earth की radius plus height, right? Radius of the earth is r, h is the height above which this smaller object is above the surface. So we can write this gh equal to gm अपॉन, हम r को r प्लस h से सब्सटीट्यूट कर देंगे. ओके. नाउ अगर हमने r कॉमन ले लिया बाहर तो क्या हो जाएगा? gm अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाय r का स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा. हमने r कॉमन ले लिया बाहर तो. नाउ वी नो gm अपॉन r स्क्वायर इज दिस g. So we can write this gh equal to, this is acceleration due to gravity upon 1 plus h upon r whole square. Now हमें बायनोमियल एक्सपेंशन आता है इसका, और अगर h जो है वो r से बहुत छोटा है तो हम इसकी जो हायर पावर रहेगी दैट इज h बाय r रेज़ टू पावर 2 से हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि h बाय r इज वेरी वेरी स्मॉल.
So we will only consider one power. So what is binomial expansion of this one? G upon 1 minus 2h by r. अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे दैट इज 1 plus h by r raised to power minus 2. We can write this 1 plus h by r का square equal to 1 plus h by r raised to power minus 2, राइट. हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नाउ हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, बिकॉज h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसकी जो हायर पावर रहेगी हम वो निगलेक्ट कर देंगे. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, राइट. सो दिस इज द वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट. नाउ वी विल कंसिडर विथ डेप्थ. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ and this depth is measured from the surface of the earth. This height is also measured from surface of the earth. The depth is also measured from the surface of the earth. It will be towards the center. So with depth हम पहले एज्यूम करेंगे कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी से बना हुआ है, दैट इज देयर इज नो वेरिएशन इन डेंसिटी, वो कांस्टेंट है. सो वी कैन कंसिडर डेंसिटी ऑफ अर्थ एज रो. We know rho equal to m by v, so we can write mass of earth in terms of rho. So we get mass equal to rho into volume. And what is volume? Volume is 4 by 3 pi r cube. हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो प्रॉपर स्फीयर है, so we get 4 by 3 pi r cube, right. So this is the mass of the earth. Now हमें ये मिल गया m इक्वल टू कितना है, 4 by 3 रो बाय r क्यूब. नाउ वी कैन राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला. r से हम r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी नो मास ऑफ द अर्थ इज 4 by 3 रो पाई r क्यूब. सो वी गेट g इक्वल टू g into this mass upon r square. So 4 by 3 रो g by r हो जाएगा. r क्यूब से r स्क्वायर डिवाइड करने के बाद r बचेगा और g से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस. नाउ हमने देखा था कि जो हॉलो स्फीयर होता है उसके सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जीरो है. तो फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगा. नाउ कंसीडर इन अ हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर में हम कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया हमने, और लेकिन हॉलो स्फीयर के अंदर ही है. तो क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ज़्यादा हो जाएगा. सपोज हम ये हॉलो स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं और पहले यहाँ पे था, दिस इज द सेंटर. सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो था, हमने देखा था. तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट किया. सो व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इज मोर क्लोजर टू दिस पार्ट, राइट. ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पार्ट के पास है लेकिन इस पार्ट से थोड़ा दूर है. और एक चीज क्या है कि इस पार्ट का जो मास है वो ज़्यादा है, तो इस पार्ट के वजह से जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पार्ट के वजह से भी फोर्स लगेगा. सो दीज टू फोर्सेस विल गेट कैंसल, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पार्ट है और थोड़ा दूर है यहाँ इस ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे छोटा पार्ट है और पास में है. तो ये इसके वजह से, दोनों फोर्स की वजह से टोटल फोर्स जो हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे वो जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस हॉलो स्फीयर के वजह से उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो रहेगा. दैट मीन्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज जीरो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन. सो हम ये यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट
इसके ऊपर में जितने, इसके ऊपर में हॉलो स्फीयर हम कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके वजह से जो फोर्स होगा यहाँ पे वो जीरो होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किसके वजह से लग रहा है, बस ये इनर स्फीयर के वजह से, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। सो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा वो बस वो ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्फीयर रहेगा उसके वजह से ही फोर्स रहेगा। उसके बाहर में जो स्फीयर है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर्स है। सो एंड हमें पता है कि हॉलो स्फीयर की वजह से फोर्स जीरो होता है अंदर। नाउ वी विल सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। हमें पता है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी होती है gm/r²। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनर स्फीयर के सरफेस पे है, तो उसके वजह से g कितना हो जाएगा, gm/r²। एंड व्हाट इज r? r इज कैपिटल R माइनस d। सो gm/ कैपिटल R माइनस d का स्क्वायर। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, सो हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। सो वी विल कॉल दिस मास एज md बिकॉज दिस इज द मास ऑफ इनर स्फीयर, दिस इज द मास ऑफ इनर स्फीयर एंड दिस इज द मास ऑफ complete अर्थ। सो वी कैन फाइंड दिस कैपिटल md by this formula, rho into 4/3 pi r cube, and what will be r cube in this case, r minus d का cube, so it will be g into 4/3 rho pi r minus d whole cube upon r minus d square. So what do we get now? gd equal to this r minus d square and r minus d cube will get cancelled and only r minus d will remain. यहाँ पे बस r minus d बचेगा and वो term 4/3 g rho pi r minus d cube. So we get 4/3 rho g pi r minus d cube, right? ये बचेगा, सॉरी डी क्यूब नहीं, ओनली आर माइनस डी बचेगा क्योंकि आर माइनस डी स्क्वायर उसको कैंसिल कर देगा। सो दिस इज वी गेट। नाउ वी कैन टेक दिस आर कॉमन, हम यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो हमें ये मिलेगा, यहाँ से आर कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस डी बाय आर। सो वी गेट जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय r. So this is the variation of acceleration due to gravity with depth, and this is variation of acceleration due to gravity with height. So we get the difference. यहाँ पे जो है हाइट की वजह से ट्वाइस मतलब acceleration due to gravity changes more rapidly with height and less rapidly with this depth. So these are important formulas. We can derive anytime by using this derivation. अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे आएगा, इसका सपोज हम ग्राफ बनाते हैं, this is G and this is T equal to H. Sorry. This is R. So ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे तो लीनियर है G इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना कम होगा एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे डेप्थ कम होगी वैसे वैसे जी बढ़ेगा एंड देन एट सरफेस मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद वापस कम होना शुरू होगा क्योंकि विथ हाइट
जी कम हो रहा है, सो वी गेट, और कैसे कम हो रहा है, ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, सो वी गेट दिस कर्व, दिस इज लिटिल बिट कर्व. And this is when r is equal to r. This is when r equal to 0, and this is when r is greater than this radius of the earth. So इधर height हो जाएगा and इधर depth हो जाएगा. So this is how acceleration due to gravity varies with height and depth. That is height and depth. Depth के वक्त linear curve है और height के वक्त थोड़ा curved है, that is decreasing slope है. So that's it. हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर. देन उसका वेरिएशन देखा हमने हाइट की वजह से कितना है, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जब h r से बहुत कम होगा, दैट इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू r. और अगर हाइट भी कंपेरेबल है r के साथ तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. और डेप्थ के साथ देखा हमने क्या आ रहा है, डेप्थ के साथ g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर. तो डेप्थ कितना भी हो हमें मैटर नहीं करता कि डेप्थ छोटा है या बड़ा है, लेकिन फॉर्मूला यही आएगा, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर. थैंक यू.